Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today's target is to complete case scenario number 23 and 24. In case you are new here, my name is Anshita and we have covered a lot of case scenarios and MCQs. In case you have not seen those videos, please check out the description box below. I have mentioned the link of the playlist where you can find out all these videos. Also, in case you want to connect with me, you can connect with me on Telegram and LinkedIn. The link is in the description box below. Okay, so let's begin with case scenario number 23 first. It is given on page number 185. Let's begin. Mr. I was appointed as the statutory auditor of Messrs. New Limited and Messrs. Old Limited. Both the companies were having their base in Chennai. They had recently listed their shares on the stock exchange. So, Mr. I is the auditor of listed public company. Okay. Now, for the functional year 2021, Mr. I had signed limited review reports for each quarter till the quarter ended 31st December 2020 for both the companies. So, for how many quarters he has signed the audit limited review reports? 3 quarters. Okay. Owing to the personal commitments and increased workload, he tendered his resignation to Messrs. New Limited on 30th of January 2021 and asked the company to appoint another auditor to issue the audit report for the remaining quarter and financial year 2021 as a whole. But the management of the company did not accept the same. They argued that it's the legal responsibility of Mr. I to do the same. After long discussion, the issue was settled. Now, let's analyze. तो अगर किसी भी ऑडिटर को रिज़ाइन करना होता है विदिन हाउ मेनी डेज ही शुड रिज़ाइन विदिन 30 डेज. तो क्या ऑडिटर ने विदिन 30 डेज रिज़ाइन कर दिया? नो. इन केस ऑफ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट 45 डेज का टाइम होता है. सो इफ़ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर 45 डेज के अंदर अगर ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है, देन इन दैट केस ऑडिटर को अपने रेजिग्नेशन से पहले सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वार्टर की ही लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट को साइन करना होता है. ठीक है, या फिर जो भी ऑडिट रिपोर्ट है सिर्फ उसको साइन करना होता है. लेकिन अगर आपको पता होगा, और इस केस में तो ऑडिटर ने 30 डेज के अंदर ही कर लिया रिज़ाइन, तो कोई इशू वाली बात नहीं थी. लेकिन वहाँ पर एक और प्रोविजन था कि इफ द ऑडिटर हैज साइंड द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट और द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, देन बिफोर रेजिग्नेशन ही विल हैव टू इशू द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर एज वेल एज द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर एज अ होल. सो इफ़ यू रिमेंबर दिस, तो आप उस केस में आपको पता होगा कि यहाँ पर मिस्टर आई की ऑब्लिगेशन है कि उसको लास्ट क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2021 का भी लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी एंड ही विल हैव टू गिव द ऑडिट रिपोर्ट एज वेल. राइट. सो यहाँ पर क्या मैनेजमेंट सही बोल रही थी? तो मैनेजमेंट सही बोल रही थी, बट रीज़न ये है कि उसने ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स की लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू कर दी है. तो नाउ इट बिकम्स अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन ऑन हिम दैट ही विल हैव टू इशू द लास्ट क्वार्टर की लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द होल ईयर. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पैरा में क्या दिया है. हाउएवर मिस्टर आई कंटिन्यू टू एक्ट एज द ऑडिटर फॉर मेसर्स ओल्ड. Messrs. न्यू के साथ वो सारा पहले डिस्कशन हुआ था. नाउ ही इज कंटिन्यूइंग टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर Messrs. ओल्ड लिमिटेड. Now, during the first week of March 2021, Mrs. W, wife of Mr. I, तो I की wife कौन है? Mrs. W. तो Mrs. W had borrowed a sum of 6 lakhs from the company for her personal use. Having come to know about this, Mr. I immediately informed the management that he has been disqualified to act as the auditor and told them that he won't issue the audit report for the last quarter. Do you think कि ऑडिटर ने सही किया है? देखते हैं. यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ऑडिट का चैप्टर एप्लीकेबल हो रहा है, जिसके अंदर सेक्शन 141 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड हैं उसके हिसाब से रिलेटिव ऑफ द ऑडिटर हैज़ बोरोड अ सम और इज इंडेटेड टू द कंपनी वेयर द ऑडिटर इज डूइंग द ऑडिट फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़. तो ज़्यादा 5 लाख से ज़्यादा का क्या कर लिया? इंडेटेडनेस हो गया. सो दैट इज़ वाई डेफिनेटली द ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141. ठीक है. लेकिन अगर हम यहाँ भी देखें, ये चीज़ जो हुई है ये हुई है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर. तो इसका मतलब है कि उस ऑडिटर ने अभी तक 3 क्वार्टर्स की लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट सबमिट कर दी होगी. हाँ, कर दी होगी. लेट्स सी आगे क्या लिखा है. 1 सेकेंड. आगे लिखा हुआ है, बट वंस अगेन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट द सेम.
मैनेजमेंट मना कर रही है. दे आर्ग्यूड दैट इट्स द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर आई टू डू द सेम. आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन द इशू वॉज सेटल्ड. नाउ अब इसमें बताओ क्या मैनेजमेंट इस केस में सही है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो वैसे ही वाली चीज़ हो गई जैसे हमने ऊपर वाले पैरा में भी पढ़ा था विद सम मॉडिफिकेशन क्या सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट आया. अदरवाइज केस बिल्कुल सेम है. 3 क्वार्टर्स की ऑलरेडी रिपोर्ट इशू हो चुकी है, तो क्या लास्ट क्वार्टर की ऑब्लिगेशन अभी भी मिस्टर आई पर है या नहीं. तो देखो यहाँ पर मिस्टर आई पर ऑब्लिगेशन रहती, बट आपको पता होगा सर्कुलर के अंदर एक चीज़ मेंशन थी कि अगर ऑडिटर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर सेक्शन 141 तो उस केस में आपके जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे. कौन से प्रोविजंस, जैसे प्रोविजंस 3 क्वार्टर्स में अगर रिपोर्ट फाइल कर दी तो आपको पूरे 4th क्वार्टर की भी फाइल करनी पड़ेगी, पूरे साल की भी फाइल करनी पड़ेगी. ये सारी आपके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. रीजन बीइंग सेक्शन 141 अट्रैक्ट हो गया है. सो दैट इज़ वाई इस केस में यहाँ पर मैनेजमेंट गलत है. पहले वाले जो पैराग्राफ में मेसर्स न्यू लिमिटेड के केस में ऑडिटर गलत था, बट मेसर्स ओल्ड लिमिटेड के केस में यहाँ पर मैनेजमेंट गलत आर्ग्यू कर रही है. ठीक है, लेट्स सी आगे क्या दिया हुआ है. Apart from the above assignments, Mr. I was engaged in the audits as well. Internal audit of ABC Private Limited, registration of RCO Trust, which was started in 31st December 2020. He took the tax audit assignment for the same. Statutory audit of Messrs. CFBN Private Limited and NBFC for financial year 2021. During the course of audit, there was a difference of opinion between the auditor and the management of the company with respect to inclusion of the following items in the calculation of net owned funds of the company. However, the issue was resolved later on. ठीक है, सो ये सारे आइटम्स पे डिस्कशन हुआ. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देन इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह. सो इफ़ यू नो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपका नहीं आता नेट ऑन फंड्स के अंदर. इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग ये वाला आपका आ जाएगा. एक NBFC है तो NBFC नो, NBFC के केस में फिर नो, क्योंकि ये NBFC अगर NBFC के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो दिस हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड और दिस हैज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. दिस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट. रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात करें तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आपका ही नहीं आएगा क्योंकि आपका फ्री रिजर्व नहीं है. देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी आपका माइनस हो जाता है ना. तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या फ्रेम किया होगा इसके बेसिस पर. Mr. J, friend of Mr. I, CA in practice, invited Mr. I to set up a network firm. Okay, professional ethics के chapter से related आ गया. Along with 2 more friends, all the 4 auditors agreed to same and decided to start a network by the name Messrs. JI and Company. Do you think the name is correct? No, the name is not correct. क्यों? Network के केस में name आपका जो last में लिखा जाता है that should be affiliates. Word affiliates लिखना चाहिए था, but यहाँ पर company mention किया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है. However, one of the auditors suggested that they cannot use the term and company and it needs to be changed. बिल्कुल सही बोल रहा है. But Mr. J informed that there is no such regulation regarding the firm's name. After further discussion, a suitable name in accordance with the provisions of Chartered Accountants Act and regulation was accepted by all the 4 partners. Let's see क्या question frame किया होगा. First question is the management of Messrs. New Limited. New Limited कौन सी वाली थी जिसके इसमें वो 3 हमारा फर्स्ट जिसमें हमारा ऑडिटर गलत था. Right in asking Mr. I to issue the audit report for the last quarter for the financial year and for the financial year 2021 as a whole despite his resignation, what could be the reason for the same? Yes, the management was correct. Why? Because he has already filed or he has already issued the limited review report for the 3 quarters. So now it becomes the obligation, since he has already issued the limited review report for 3 quarters. He has to now compulsorily issue the report for the last quarter along with the audit report for the whole year. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैनेजमेंट सही है? तो मैनेजमेंट बिल्कुल सही है. तो इस केस में जहाँ पर भी नो दिया हुआ है सबसे पहले तो उसको, जहाँ पर भी नो दिया हुआ है उसको सबसे पहले कट कर दो. सो हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस पढ़ने हैं. येस, इफ द ऑडिटर रिजाइंस विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ही इज ऑब्लिगेटेड टू इशू द ऑडिट रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर. तो यहाँ पर ये चीज़ गलत दे दी इन्होंने, रीजनिंग गलत है. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है. येस, मिस्टर आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर 2021 सिंस ही वॉज द वन हु हैड इशूड द सेम फॉर द फर्स्ट 3 quarters. ही इज ऑल्सो ऑब्लिगेटेड टू इशू द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज अ होल इफ ही रिजाइंस ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर. तो एक बात बिल्कुल सही दे रखी है एज पर द प्रोविजंस है. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज गोइंग टू बी डी.
Let's move on to the next question. Next question is from the aspect of SEBI LODR regulations and the recent circular on resignation of statutory auditors from listed entities. Is the management of Messrs old company, जहाँ पर section 141 attract हो गया था because his wife took a loan of more than 5 lakhs, is right in asking Mr. I to issue the audit report for the last quarter. What could be the reason for the same? So यहाँ पर जो आपकी मैनेजमेंट थी वो गलत थी, तो मैनेजमेंट क्या सही थी? नो, द मैनेजमेंट वॉज नॉट करेक्ट. तो जो भी येस वाले ऑप्शन है उसको सबसे पहले क्या कर दो, काट दो. तो बचा क्या है? सिर्फ एक ही ऑप्शन, नो. सिंस ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल. दिस इज एज पर द सर्कुलर, राइट. Let's move on to the next question. Question number 3. Which among the name shall be suitable to the newly started network firm in accordance with the provisions of Chartered Accountants Act and regulations? So and affiliates word काफ़ी ज़्यादा सही है, यही लगाना होता है इनफैक्ट नेटवर्क के लिए. तो the correct option is going to be D. Let's move on to the next question. Within which date should the resignation of RCO trust should be done? तो registration, sorry not resignation, registration. तो इसमें जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो 31 दिसंबर 2020 को आपकी ट्रस्ट स्टार्ट हुई थी. तो ट्रस्ट को विदिन 12 मंथ्स अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है. तो 12 मंथ्स आपका टाइम हो जाएगा. सो विच मीन्स 31 दिसंबर 2021 आपका आंसर हो जाएगा. ना रजिस्ट्रेशन बिफोर 31 मार्च 2021 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो मार्च नहीं आएगा. नो टाइम लिमिट, ये भी गलत हो गया. 31 दिसंबर, हाँ तो यहाँ पर शायद ये मिस कर दिया इन्होंने, ईयर मेंशन करना भूल गए. 31 दिसंबर 2021 होना चाहिए. और यहाँ पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पूछी थी, तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्ट के केस में आपकी जाती है 10B के अंदर. सो यहाँ पर 10B मेंशनड है, यहाँ पर 31 मार्च मेंशन है, तो ये भी गलत हो गया. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी में बस एक मिस्टेक है, यहाँ पर 2021 वो मेंशन करना भूल गए. 12 महीने के अंदर विद इन 1 ईयर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर विल बी सी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, केस सिनेरियो. नेक्स्ट केस सिनेरियो पर आ जाते हैं. ऑलरेडी आई हैव डन द all the questions of case scenario 23. Let's move on to the case scenario number 24. Messrs. IAM and Company Chartered Accountants is a newly started firm. Their first assignment was to conduct the statutory audit of Messrs. CD Crackers Limited, a cracker manufacturing company. एक public company है, ठीक है, public company है. Since that was their first audit, the partners immediately accepted the work without paying attention to the relevant procedures. So यहाँ पर अगर देखें तो फर्म नई स्टार्ट हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म नई स्टार्ट हुई है, कंपनी नई नहीं है, ठीक है. सो ऑडिट फर्स्ट किसका है? फर्म का ऑडिट पहली बार हो रहा है, फर्म पहली बार ऑडिट कर रही है, लेकिन कंपनी ने तो पहले भी ऑडिट करवाया है. हाँ, they started their audit work from 25th of May 2020 for the financial year, से previous year ended 31st March 2020. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? इमीडिएटली अपना काम एक्सेप्ट कर लिया. डू यू थिंक दे डिड द राइट थिंग? नो. प्रीवियस ऑडिटर से तो कम्युनिकेट ही नहीं किया, जो कि करने की रिक्वायरमेंट होती है. प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, क्लॉज नंबर 8 पार्ट 1 स्केड्यूल 1 के अंदर, कि आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना होता है बिफोर टेकिंग दी न्यू असाइनमेंट, टेकिंग दी ऑडिट. तो क्लॉज 8 के अंदर यू विल बी गिल्टी, ठीक है. लेट्स सी क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा. Let's read further. During the course of audit, the auditors requested for the financials for the preceding previous year along with the details of transactions till 25th of the current year. तो उन्होंने ऑडिट स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि आप हमें पहले वाले साल के 31 मार्च 2020 से पहले, मतलब 31 मार्च 2019 के भी फाइनेंशियल दे दो, और हमें कुछ डिटेल्स चाहिए ट्रांजैक्शन की जो 31 मार्च ऑफ द करंट ईयर हो रही है. करंट ईयर का मतलब हो गया 25th of May 2021 की, ठीक है ना. ऑडिट कौन से ईयर का हो रहा है? ऑडिट हो रहा है 1920 का. The management, however, argued that both the details are out of scope of audit and hence they told that they cannot provide these details. However, after repeated requests from the auditors, they finally provided it in the month of September. So, do you think the auditors were right in asking these particular information? Definitely they were right. वो पिछले साल के financials भी मांग सकते हैं और up to the current date की details भी मांग सकते हैं. That is after the balance sheet date, because उनको कुछ न कुछ conditions, events को भी देखने की जरूरत होती है काफी सारी चीजों को assess करने के लिए, ठीक है. It was suspected that the senior accountant could have indulged in a fraud amounting to 117 lakhs. तो फ्रॉड हो सकता था 117 lakhs. जैसे ही फ्रॉड आता है ना, मेरे दिमाग में 3 चीज़ें आ जाती हैं. सेक्शन 143 सब सेक्शन 12, कारो का क्लॉज नंबर 10 एंड 240 SA. ये 3 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए आंसर्स लिखते वक्त भी, ठीक है. तो यहाँ पर 117 lakhs के फ्रॉड में इंडल्ज्ड हो सकता है, ऐसा सस्पेक्टेड है.
However, on further investigation by the management, it was found that there was a gross mistake on the part of the accountant who had wrongly debited and credited certain accounts by mistake, which amounted to 18 lakhs. So 18 lakhs में से इस 1,17,000 में से 117 लाख में से 18 लाख का तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, तो बेसिकली फ्रॉड का जो अमाउंट है वो 99 लाख्स का हो सकता है, क्योंकि सस्पिशन था कि 117 लाख्स का है, बट उसमें से 18 लाख का जो सस्पिशन है वो ख़त्म हो गया. नाउ स्टिल वी आर नॉट श्योर अबाउट 99 लाख्स, यहाँ पर अभी भी सस्पिशियस अमाउंट है ये, ठीक है, ओके. अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की होगी, ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था कि इन्वेस्टिगेशन की गई बाय द मैनेजमेंट. फ्रॉड को ढूंढने की या फिर फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, प्रिवेंट करने की, करेक्ट करने की ड्यूटी भी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है. तो इसीलिए मैनेजमेंट ने ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी थी. ये हम स्टैंडर्ड्स के अंदर भी पढ़ते हैं. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द मैनेजमेंट, तो ये जस्ट फॉर नॉलेज था कि ऐसे 240 भी ऐसे ही कहते हैं कि मैनेजमेंट को करना चाहिए था. तो बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे, जस्ट फॉर नॉलेज. Next, the company provided proper and correct evidence for the balance amount. Hence, the auditors were strongly convinced that no fraud had taken place. तो कंपनी ने प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड किया बैलेंस अमाउंट के लिए भी. हेंस दी ऑडिटर्स वर स्ट्रांगली कन्विंस्ड कि कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं है. तो 99 लाख्स का भी नहीं हुआ. नाउ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन ऑडिट कमिटी, द ऑडिटर सजेस्टेड टू द डायरेक्टर्स फाइनेंस टू रिप्लेस द एक्सिस्टिंग अकाउंटेंट एज ही वॉज पुअर इन द बेसिक अकाउंटिंग स्किल्स. ठीक है. इनिशियली द कंपनी थॉट of handing over the tax audit work to the previous auditor. However, since they had a bad experience last year in form of an argument regarding the contents to be included in the tax audit report, especially with respect to disclosure of key ratios, it was decided that IM and company shall also act as the tax auditors. So, is there any problem कि अगर कोई statutory auditor tax auditor बन जाए तो कोई problem होती है क्या? No. The statutory auditor can always become the tax auditor of the same company. कोई issue वाली बात नहीं है. After the conclusion of audit, Mr. I, one of the partners of the firm, was confused as to whether the firm could be held guilty of professional misconduct for plausible violation of any of the provisions of the Chartered Accountants Act. He contacted Mr. M, his partner, to get clarified about the doubt. Messrs higher price, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा क्लॉज 8 के अंदर वो गिल्टी हो रहे थे. पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल तो गिल्टी हो रहे थे, बट दैट वाज बिकॉज उन्होंने प्रीवियस ऑडिटर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं किया था. नाउ हायर प्राइवेट लिमिटेड इज अ रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉन्टैक्टेड मिस्टर आई regarding the vacancies in one of the leading manufacturing company. Eventually, Mr. I resigned as the partner of IM and company and joined the company. The agency raised an invoice for the service rendered by them, which amounted to 0.2% of the CTC offered. Mr. I agreed to pay the amount. However, since his friend was a manager at the agency, he received full discount on the invoice. तो आपको क्या लगता है इस केस में मिस्टर आई गिल्टी हुआ कि नहीं हुआ? मिस्टर आई बिल्कुल गिल्टी हो गया. क्यों? क्योंकि नाउ ही इज़ नॉट इन टू प्रैक्टिस बट ही इज़ इन टू जॉब. अब जॉब के अंदर भी ही इज़ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो इस केस में वो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2, क्योंकि मेंबर इन सर्विस हो गया तो पार्ट 2 क्लॉज 1 के अंदर गिल्टी हो जाएगा. वाई? बिकॉज ही इज़ शेयरिंग अ परसेंटेज ऑफ द रेम्यूनरेशन दैट ही इज़ गोइंग टू गेट. ठीक है, परसेंटेज ऑफ एमोल्यूमेंट्स शेयर कर रहा है. ठीक है, जो वो एम्प्लॉयमेंट से उसको मिलने वाली है. सो देयर इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट. Angered by the act of resignation, Mr. M filed complaint with the institute stating that I had violated the provisions of Chartered Accountants Act and is guilty of professional misconduct. Having come to know that Mr. M was one of those who filed the complaint against Mr. I decided to take a revenge. ओहो, लड़ाई हो गई दोनों के बीच में. While thinking of for the suitable reason to file a complaint, he recalled the fact Mr. M was engaged as the registration authority for obtaining the digital signatures for his client. Quoting the same, he filed a complaint against Mr. M. तो Mr. M ने Mr. I के खिलाफ कोई complaint डाल दी. Now Mr. I is proceeding with a complaint against Mr. M, stating that he was guilty of misconduct for violating the provisions of Chartered Accountants Act. But क्या यहाँ पर Mr. I सही है ये बोलने के लिए कि registration authority for obtaining digital signatures for his clients, ऐसे वो services में engaged है Mr. M, तो he is guilty? No. Why? Because registration of DSC is totally allowed as per the recent decisions of Ethical Standards Board. तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो मिस्टर एम तो कोई भी गिल्टी, मिस्टर एम इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. बट हाँ, मिस्टर आई गिल्टी हो रहा है इन केस बिकॉज ही हैज़ शेयर्ड दी परसेंटेज ऑफ एमोल्यूमेंट्स विद सम अदर पर्सन. Right, let's see what questions they are framed. What can you infer from the situation given in point 1? What is point 1? Let's first of all check what is point 1. तो point 1 था ये वाला.
पॉइंट 1 है ये वाला, द ऑडिटर्स रिक्वेस्टेड फॉर डिटेल्स। अच्छा, पिछले पहले साल की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और अभी तक की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो यहाँ पर डू यू थिंक मैनेजमेंट वॉज राइट? नो, मैनेजमेंट वॉज नॉट राइट, सो दैट इज वाई ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। द ऑडिटर्स हैव द राइट टू आस्क ओनली द डिटेल्स ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड नॉट द डिटेल्स ऑफ नो, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर वैसे भी उन्होंने 15th मेंशन कर दिया, एक्चुअली उसने 25th तक की डिटेल मांगी थी, ऑल्दो ये क्लरिकल मिस्टेक है, बट यहाँ पर तो उन्होंने वैसे गलत ही लिख रखा है, वो दोनों ही इन्फॉर्मेशन को मांगने के लिए एलिजिबल है। बोथ द ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट हैव द राइट टू आस्क बोथ द डिटेल्स एंड राइट टू नॉट टू प्रोवाइड, नहीं, द ऑडिटर्स हैव द राइट टू आस्क बोथ द डिटेल्स, करेक्ट। तो ऑडिटर के पास बिल्कुल राइट था, ही कैन आस्क फॉर बोथ द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एज वेल एज टिल डेट। नेक्स्ट, Messrs IM company, is Messrs IM company guilty of professional misconduct for violating any of the provisions of the Chartered Accountants Act? If so, as per which clause? Yes, they are guilty. Why? Because they did not take the previous, they did not communicate to the previous auditor. So इस केस में they are guilty under clause 8. Okay, so they are guilty under clause 8. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने ऑलरेडी केस स्टडी सॉल्व करते हुए पहले ही एनालाइज कर लिया था। इज मिस्टर आई गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? इफ सो, अंडर व्हाट क्लॉज? यस, मिस्टर आई इज गिल्टी अंडर विच क्लॉज? अंडर क्लॉज 1 पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल। तो क्लॉज 1 पार्ट 1, नो पार्ट 2 है, सो क्लॉज 1 पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये भी हमने पहले एनालाइज कर लिया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर एम इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? इफ सो, अंडर व्हाट क्लॉज? सो मिस्टर एम तो गिल्टी नहीं था क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ही तो कर रहा था डीएससी के अपने क्लाइंट्स के, तो ये तो अलाउड होता है एज पर व्हाट? एज पर द रीसेंट डिसीजंस ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड। सो मिस्टर एम इज नॉट गिल्टी, ये बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तो हमने केस स्टडी को पढ़ के ही समझ लिए थे कि ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इट वाज वेरी मच क्लियर, राइट, हिंट मिल रहा था। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस केस स्टडी। अगर आपको प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे से आता है तो आपको ये केस स्टडी बहुत ज़्यादा ईजी लगी होगी। So yeah, that's about it. If you like the video, please don't forget to give a big thumbs up to the video, share it with your friends, and comment below your suggestions, your feedbacks, your likes and dislikes. Also, in case you're new here, please subscribe to the channel and share your experience with me, motivate me to make more such videos for you guys. So yeah, thanks for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.